Hello everyone. In this lecture, we will discuss the concept and some property of Fourier transform and also discuss some examples related to this topic. So, Fourier transform is a mathematical model that helps to transform signals between two different domains, such as from the frequency domain to the time domain, or you can say from time domain to frequency domain. So did you know there are four different definitions of Fourier transform? So in this video we will be focusing on the fourth definition only. Okay, so let's get started. So Fourier transform of fx, here x lies between minus infinity to plus infinity. So Fourier transform of fx, that is g of s, give us 1 by under root 2 pi minus infinity to infinity f of x e to the power iota s x dx. So inverse Fourier transform क्या हो जाएगा? Inverse Fourier transform of g of s. Here s lies between minus infinity to plus infinity. So it will be for inverse Fourier transform of g of s, that is f of x, equals to 1 by under root 2 pi माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? g of s आएगा e to the power minus iota sx ds. Now comes to some important formula related to this. So the first formula is integration of sin ax. So the first formula is integration of sin ax by x, limit from 0 to infinity, that will be equal to pi by 2. Here a is a constant, the coefficient of x. Second formula is 0 to infinity e to the power minus x square dx, that is equal to under root pi by 2. Similarly, the third definition is 0 to infinity e to the power minus ax sin bx dx, that is equal to b by a square plus b square. यहाँ पर b आपका क्या है? That is the coefficient of x in sin bx, and a आपका क्या है? Coefficient of x in the exponential part. Similarly, the fourth formula is 0 to infinity e to the power minus ax cos bx dx, that is equal to a by a square प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? a आपका क्या है? एक्सपोनेंशियल में x का कोफिशिएंट, और b आपका क्या है? cos वाले में x का कोफिशिएंट. राइट, ये आपको ध्यान रखना है. जब cos वाला टर्म प्रेजेंट होगा तब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला टर्म कंट्रीब्यूट करेगा इन द अपर पार्ट a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जब साइन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? b वाला पार्ट, मतलब कि साइन वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और सब में यहाँ पर लिमिट आप देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है. सारे फार्मूला में जो आपका लिमिट है दैट इज़ फ्रॉम 0 टू infinity. So the fifth formula is 0 to infinity e to the power minus a x square. यहाँ पे क्या आ गया? x square dx. देखो यहाँ पे पहले वाले में आपका क्या था? ये वाला देखो 0 to infinity e to the power minus x square. Only x square is there. And here the coefficient of x square is 1 only. But here आप देखो coefficient क्या हो गया? a हो गया. So 0 to infinity e to the power minus ax square dx, that is equal to 1 by 2 under root pi by a. Okay. So now comes to number 6th formula, that is 0 to infinity e to the power minus ax square cos bx dx. यहाँ पर आपका क्या है? x स्क्वायर है. इन द फॉर्मूला नंबर 4 यहाँ पे क्या था? e टू द पावर माइनस ए एक्स था. यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है. e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर cos bx dx, दैट इज इक्वल टू 1 by 2 अंडर रूट पाई बाई ए. ये वाला ए क्या है?
एक्सपोनेंशियल में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है। यहाँ पर बी आपका क्या है, कॉस में एक्स का कोफिशिएंट, राइट। इन द सेवेंथ फॉर्मूला सी द लिमिट गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई बाई ए ई टू द पावर बी स्क्वायर बाई 4 है। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो हम आगे के एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे। तो देखो, so this is the example number 1. So find the Fourier transform of Gaussian distribution function fx is equal to n e to the power minus ax square. यहाँ पे n and a both are constant here. So we know Fourier transform of fx फॉर्मूला आपका क्या था, 1 by अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f of x e to the power I s x dx, राइट। सो f of x आपका क्या है, गिवन है, दैट इज n e to the power माइनस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन की जगह पर हम क्या लिख देंगे, वही वाला फंक्शन n e to the power माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो n आपका क्या है, कांस्टेंट है, टेकिंग from outside n divided by under root 2 pi minus infinity to infinity e to the power minus ax square plus I s x dx। तो ये वाला हमने अभी देखा था, ये वाला फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, नंबर 7 वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला आप देखो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। सिमिलरली यहाँ पे हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट एज इट इज़ पाई बाई, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ a ई टू दी पावर आपका क्या था, बी स्क्वायर बाई 4a। बी स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, आई एस का स्क्वायर दैट इज आई स्क्वायर एस स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो इट विल बी ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 4a, राइट। यहाँ पे रूट पाई कैंसिल, n डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2a। सो यहाँ पे हमने देखा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर दैट इज़ द गॉसियन फंक्शन, it will be n by under root 2a e to the power minus s square by 4a. Okay, next example 2. So find the Fourier transform of Dirac delta function. Okay, so here function given Dirac delta function. So this is the formula of Fourier transform. Instead of function हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिराक डेल्टा फंक्शन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, सो वी नो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स that is equal to f of a when it is valid, when a is lying between minus मतलब कि इंटरवल के अंदर होना चाहिए, राइट। a must be lies in between the upper limit and lower limit। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला हमने प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है यहाँ पर। देखो डेल्टा एक्स वी कैन राइट डेल्टा एक्स माइनस 0। सो 0 हियर लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सो वी कैन सिंपली पुट इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन आपका क्या है, ई टू द पावर आई एस एक्स, हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पर 0 पुट करेंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, राइट। using the property of Dirac delta we can simply say
ये वाला इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, सिंपली e टू द पावर आई एस एक्स और x के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो आपके लिमिट के बीच में है. सो दिस प्रॉपर्टी विल बी वैलिड हियर. ओके, सो एफ ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये वाला आपका हो गया 1 e टू द पावर 0 that is equal to 1. So Fourier transform of Dirac delta function delta x that is equal to 1 by under root 2 pi. Okay, so example number 3, find the Fourier transform of fx given e to the power minus a mod x. Here x lies between minus infinity to plus infinity and a greater than 0. So instead of the function we can simply put the given function that is e to the power minus a mod x. So we know in the limit, so now we break the limit from minus infinity to 0 one limit and other limit goes from 0 to infinity. So in the limit minus infinity to 0 we know mod x is equal to minus x. So it will be so now it will be e to the power ax. Similarly, in the limit 0 to infinity mod of x equals to x. So it will be e to the power minus ax, right? तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू 0. फंक्शन विल बी हियर e to the power ax iota sx e to the power iota sx dx plus 0 to infinity e to the power minus ax e to the power isx dx. Now इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, दोनों में x क्या है, कॉमन ले सकते हैं, e टू द पावर a प्लस आई एस डी एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस आई एस इन द ब्रैकेट. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a plus is into x divided by the coefficient of x, right? a plus is यहाँ पे भी वही हो जाएगा, e to the power minus of a minus is by x divided by the coefficient of x. So the negative sign will also contribute here, right? Minus of a minus is and limit goes from here minus infinity to 0. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, limit goes from 0 to infinity. Now we simply put the limits. तो यहाँ पे क्या होगा, x के जगह पर हम 0 पुट करेंगे, फिर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे. सो e टू द पावर 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, वी नो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज टेंड्स टू 0, राइट. सो ये वाला 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 विल बी 1 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे देखो आपका माइनस साइन है, सो माइनस साइन है तो वी कैन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन. सो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 1 बाई ए प्लस आई एस प्लस 1 बाई ए माइनस आई एस, राइट, क्योंकि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, a plus b into a minus b, that is equal to a square minus b square, a plus is plus a minus is, plus is minus is got cancel, we left with 2a divided by a square plus s square, because I square equals to minus 1, so minus minus it will be plus. So Fourier transform of e to the power minus a mod x, that is equal to 2a by under root 2 pi a square plus s square. Okay, and this is the final answer. So now comes to the next example, that is example number 4. So if this is already given in the question,
Fourier transform of e to the power minus iota 2 pi nu a t is equal to f of omega plus a. Then what is the Fourier transform of cos 2 pi nu a t? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई न्यू ए टी, कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। सिमिलरली इस वाले फंक्शन को भी हमने वही फॉर्मेट में लिख दिया है यहाँ पर, ई टू द पावर आयोटा 2 पाई न्यू ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा 2 पाई न्यू ए टी बाई 2। सो नाउ 1/2 टेकिंग आउटसाइड, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ये वाला फंक्शन प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वाला फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आपको गिवन है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ ओमेगा प्लस ए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये वाला माइनस हो जाता, राइट? समझ में आया सबको? सो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है कि यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल में माइनस साइन प्रेजेंट है तो यहाँ पे एफ ऑफ ओमेगा प्लस है, तो यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल में प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ओमेगा माइनस है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे, ए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ओमेगा माइनस है। सिमिलरली ये वाला आपको गिवन था एफ ऑफ ओमेगा प्लस है। सो दिस इज द आंसर, राइट? नाउ कम्स टू एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस वाले फंक्शन का निकालना है, ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट वी हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सी, so Fourier cosine transform of any function f(x) that is equal to, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 2 बाई पाई। यहाँ पे लिमिट आप देखो 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा cos sx dx, राइट? सो ये वाला आपका क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। सिर्फ लिमिट में चेंजेस आएगा और ये वाला आपका क्या, कोफिशिएंट वाला पार्ट में भी चेंजेस आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर साइन होता तो क्या होता, साइन होता तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता, साइन एस एक्स डी एक्स होता, राइट? बाकी सब सेम रहता, ओके। सो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन e to the power minus a square x square that is equal to under root 2 by pi 0 to infinity, this is the given function cos sx dx, right? तो अब हम क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी, अगर हमें इसको बनाना होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर इंटीग्रल को अगर गिवन होता माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर हमें इसको 0 से इन्फिनिटी बनाना होता तो हम क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते। तो इसका जस्ट इन्वर्स होगा, हमें गिवन है 0 से इन्फिनिटी, हमको चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो देखो वही चीज़ हमने 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और लिमिट हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को cos sx को हम ये लिख सकते हैं ना, दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i एस एक्स, क्योंकि e टू द पावर i एस एक्स क्या होता है, e टू द पावर i एस एक्स दैट इज इक्वल टू cos एस एक्स प्लस i साइन एस एक्स। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो cos एस एक्स, दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i एस एक्स, एंड जो साइन एस एक्स है दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर i एस एक्स, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमने वही लिखा है रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर, रियल पार्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर e टू द पावर i एस एक्स डी एक्स।
सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला आप देखो, हमने अभी देखा था कि जो फॉर्मूला नंबर 7 में था ये वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए स्क्वायर है, वहाँ पे फॉर्मूला में ए था, तो सिंपली जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट था बी, तो यहाँ पर भी बी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा। So the first property of Fourier transform, that is linearity theorem. If fx is equal to a1 f1x plus a2 f2x and so on, then we can say g of s is equal to Fourier transform of fx. That means that is equal to a1 g1s plus a2 g2s and so on. तो इसका मतलब क्या है कि Fourier transform जो है that is linear, और यू कैन से फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सम ऑफ फंक्शन, ये वाला आपको क्या गिवन है, सम ऑफ फंक्शन गिवन है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, क्योंकि f1x का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज g1s, f2x का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज g2s, तो इन सब का सम, फंक्शन का सम दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, और वी कैन से इफ यू मल्टीप्लाई अ फंक्शन बाय अ कांस्टेंट, द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज also multiplied by the same constant. See here the constants are a1, a2, a3 and so on. okay, अगर a1 आपका f1x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है फंक्शन के साथ, तो f1x का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज g1s, g1s के साथ भी आपका सेम फंक्शन मल्टीप्लाई में आएगा, राइट। सिमिलरली फॉर अदर्स. So now comes to the second property, that is change of scale property. If Fourier transform of any function f of x, that is g of s, then Fourier transform of f of ax, x में चेंजेस है कितना, a टाइम्स ax, तो वो क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होगा 1/a g ऑफ s बाई a, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में आएगा वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, आपको यही ध्यान रखना है ना। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of ax that will be equals to 1/a times g of s minus a. नाउ कम्स टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि फंक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट होगा, शिफ्ट वो पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। इफ़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एस, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस है, यानी कि एक्स प्लस है और यू कैन से एक्स माइनस है, तो क्या होगा, जी ऑफ एस के साथ कौन आएगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट, एक्सपोनेंशियल माइनस प्लस आई एस ए। जब यहाँ पे प्लस साइन होगा तो यहाँ पे आपको माइनस साइन लेना है, और जब यहाँ पे माइनस साइन होगा तो एक्सपोनेंशियल में आपको प्लस साइन लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। देन कम्स टू द मॉड्यूलेशन थ्योरम. So Fourier transform of any function fx is g of s, then Fourier transform of, we can say, f of x into cosine part cos ax, तो क्या हो जाएगा 1/2 g s माइनस a प्लस 1/2 g s प्लस a होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, द मॉड्यूलेशन थ्योरम इन फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट मॉड्यूलेशन इन द टाइम डोमेन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ शिफ्ट इन द, यहाँ पे आपका शिफ्ट आया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, है ना, एस माइनस ए हुआ और यहाँ पे एस प्लस ए हुआ, वी कैन से यहाँ पे आपका क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, ओके, राइट। Now comes to the fifth property, that is Fourier transform of fx is equal to g of s, then we can say Fourier transform of complex conjugate of fx, that is f star x, वो आपका क्या हो जाएगा,
ना इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दैट इज जी स्टार, लेकिन एस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एस में. एस विल बी कन्वर्टेड टू माइनस एस, राइट. ओके, now comes to the derivative theorem. If f of Fourier transform of fx is equal to g of s, then Fourier transform of first derivative df by dx, this is the first derivative. first derivative का क्या हो जाएगा, g of s के साथ क्या आएगा, माइनस ऑफ आयोटा s आएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव होता डी टू एफ बाई डी एक्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस आई एस का स्क्वायर हो जाता इंटू जी ऑफ एस. तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनथ डेरिवेटिव, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनथ डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज माइनस आई एस का पावर एन होगा, माइनस आई एस का पावर एन जी एस. जितना टाइम आप डेरिवेटिव करोगे फंक्शन का, यहाँ पे पावर में वही आएगा. एन स्टैंड्स हियर द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. एन आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है यहाँ पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6. फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आपको फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर वेयर मॉड एक्स लेस देन ए, जीरो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल write the definition of Fourier transform. So instead of function we can simply put your x square fx given here x square, and the limit of x square, that is mod x less than a, that means the limit of x square must be lies between माइनस ए टू प्लस ए. यहाँ पे लिमिट आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए टू प्लस ए, क्योंकि अगर हम ए से ग्रेटर लेंगे और ए माइनस ए से स्मॉल लेंगे तो वो क्या होगा, ज़ीरो देगा, राइट. यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है आपको, सिर्फ माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच में आपका फंक्शन का वैल्यू जो है कितना है, एक्स स्क्वायर है. तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, फंक्शन के जगह पर एक्स स्क्वायर लेंगे, माइनस ए टू प्लस ए. तो यहाँ पे देखो सिंपली हम बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे. बाई पार्ट्स तो सबको आता है, तो क्या हो जाएगा, फास्ट फंक्शन एट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर आई एस एक्स बाई डिवाइडेड में कौन रहेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज आई एस लिमिट गोज फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि इसका डेरिवेटिव 2x ई टू द पावर आई एस एक्स बाई आई एस, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, राइट. नेक्स्ट ये वाला टर्म एज इट इज़, इसको हम करेंगे 2 बाई आई एस टेकिंग कॉमन. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर से हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, x और e टू द पावर आई एस एक्स के क्या हो जाएगा, फास्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या देगा, e टू द पावर आई एस एक्स बाई आई एस, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस इन ए टू प्लस ए, फिर से माइनस x का डेरिवेटिव कितना 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ e टू द पावर आई एस एक्स बाई आई एस, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिट माइनस ए टू प्लस ए डी एक्स, राइट. यहाँ तक हो गया. अब हम क्या करेंगे, सिंपली लिमिट्स पुट करेंगे, राइट. देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, हमको क्या करना है, अपर लिमिट ए पुट करना है, लोअर लिमिट माइनस ए पुट करना है. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे ए स्क्वायर आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तब भी ए स्क्वायर आएगा. सो ए स्क्वायर बाई आई एस टेकिंग कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई एस ए माइनस ई टू द पावर माइनस आई एस ए, माइनस 2 बाई आई एस. यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट आपका एज इट इज़, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेकिंग 1 बाई आई एस आउटसाइड, ये इसका इंटीग्रेशन, राइट. तो देखो ये वाला पार्ट को ई टू द पावर, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं 2i डिवाइड कर दूँ तो ये टोटल आपका क्या देगा, साइन ऑफ एस ए. तो यहाँ पे हमने वही किया है, 2i हमने डिवाइड किया है, i तो देखो i तो पहले से था, हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया, राइट. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आई एस है, यहाँ पे आई एस है, आई स्क्वायर एस स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। लिमिट्स पुट करेंगे, ए एक्स के जगह पर एक बार ए पुट करेंगे, फिर माइनस ए पुट करेंगे तो क्या होगा, ए पुट करेंगे तो ए टू द पावर आई एस से माइनस लोअर लिमिट क्या है आपका माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस ए ई टू द पावर माइनस आई एस ए, राइट। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, ई टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस, राइट। लिमिट ग्रोज फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, और ये वाला आपका आई एस पहले से था, और ये वाला देखो 2/IS इन दोनों को है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। फिर से देखो ये वाला जो आपका सी, ये वाला जो 2IS इसको भी है और इसको भी है, तो 2 वाला IS यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाई में आएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, ई टू द पावर IS ए, एक्स के जगह पर एक बार ए पुट करना है, फिर एक बार माइनस ए पुट करना है। यहाँ पे आप देखो माइनस माइनस ए वाला आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 2a² ये वाला पार्ट आपका आया साइन ए से, फ्रॉम दिस साइन ए से, यहाँ पे देखो a टेकिंग आउटसाइड 2a/s², यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर आई एस ए प्लस e टू द पावर माइनस आई एस ए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक 2 मल्टीप्लाई और एक 2 डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा cos एस ए। यहाँ पे देखो cos एस ए आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या आएगा e टू द पावर आई एस ए, e टू द पावर माइनस आई एस ए। अगर मैं यहाँ पे 2i ऑलरेडी प्रेजेंट है, i ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 डिवाइड करेंगे, तो ये वाला पार्ट आपको क्या देगा साइन ऐसे देगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4/s³। वो कैसे हुआ देखो, यहाँ पे i कितना है i क्यूब, यहाँ पे कितना i है i क्यूब, हमने एक i इसमें यूज किया है यहाँ पे, तो बचा कितना i² बचा, i² मतलब कि माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन है ना, यहाँ पे हमने माइनस साइन दिया है, देखो ये वाला माइनस साइन कहाँ से आया, i² से आया, राइट। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा दैट इज़ 1/√2π 2a² साइन एस ए प्लस 4a/s² कॉस एस ए माइनस 4/s³ साइन एस ए। सो नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ mod x। अच्छा ये इस टाइप का हमने पहले किया था ना, e टू द पावर माइनस, इस टाइप का हमने पहले किया था, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो राइट, यहाँ पे a था वहाँ पे a नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वही स्टेप आपको फॉलो करना है, a के जगह पर 1 लेना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा 2/√2π क्या हो जाएगा 1 + s², राइट। ये आंसर आना चाहिए, देखो आया है कि नहीं, 2/√2π 1 + s²। सी एग्जाम्पल नंबर 7, कहाँ गया एग्जाम्पल नंबर 7, इसका आंसर क्या है 1/√2π 2 × 1 + s² टेकिंग a इज इक्वल टू 1। जो हमने पहले एग्जाम्पल किया था वहाँ पे a था, यहाँ पे a नहीं है, तो a की जगह पर हमको क्या लेना है, सिर्फ 1 लेना है, तो ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो नाउ कम्स टू एग्जाम्पल नंबर 8, Fourier transform of the derivative of Dirac delta function, that is del prime x derivative that is proportional to whom। पूछा है आपको, 0 को प्रोपोर्शनल है, 1 को साइन के i के, किसको प्रोपोर्शनल होगा। देखो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो फंक्शन के जगह पर हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है आपको याद रखना है, क्या है इसका प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी क्या है, -∞ to ∞ f of x
डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा और यहाँ पे क्या है x माइनस है dx। तो फंक्शन में क्या चेंजेस आएगा ना, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो है a यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ x के जगह पर ये वाला a आपका कंट्रीब्यूट करेगा और नेगेटिव साइन के साथ। ये वाला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। दिस इज द डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर किसके लिए, डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a dx, that is equal to minus of f dash a, here dash or you can say prime, that is for derivative। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाला डेल्टा प्राइम x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा प्राइम x माइनस 0। तो यहाँ पे a के जगह पर क्या है, 0 है, तो इस वाले फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। यहाँ पे x के जगह पर मैं क्या पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी, राइट। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद हम 0 पुट करेंगे। इसका डेरिवेटिव फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आई के ई टू द पावर आई के एक्स, देन x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे एंड इट विल गिव अस आई के। तो इस वाले पूरा टोटल, ये जो टोटल आपका इंटीग्रेशन है, इस वाले इंटीग्रल का वैल्यू आपका कितना आया, आई के ओनली। और माइनस साइन तो है फॉर जो प्रॉपर्टी में है वही तो हम यूज़ करेंगे, माइनस 1/√2 पाई आई के। तो हमको क्या पूछा था, प्रोपोर्शनलिटी। तो प्रोपोर्शनलिटी किसको प्रोपोर्शनल है, अकॉर्डिंग टू द क्या ऑप्शंस क्या होगा, आई के होगा, क्योंकि ऑप्शन में आई के ही प्रेजेंट है, राइट। ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन डी। ओके इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। ओके सो थैंक यू।